A ball is dropped from a height h. So can anyone tell me what is the velocity just before hitting the ground? Hello. Root 2gh. The velocity will become u is under root 2gh. Now we know the collision suppose is partially inelastic. So it will jump up, it will bounce back. Does anyone know how much will be the speed of bouncing back? You know the formula is E is relative velocity of separation upon relative velocity of approach. So we know that relative velocity of separation will be E times of relative velocity of approach. Now since the ground is at rest, the approach velocity is U. So relative velocity of separation will become E times of U. Hello, yes or no? This we had Yes, sir. done. Can I say it will jump up with some other height h1? H1. And then it will bounce back. It will happen at the same one dimension thing only, but I'm making it this way so that you all can understand. This is also EU. Okay, this we had done last time, but I'm deriving it again so that you all can understand. Now, this is height h1. So this is also h1. Now, how much will be the height of bouncing back again? E Velocity of square. bouncing. E square times of u. Loss of energy is happening. It will come back with E square u. Now, this is E1 of u. This is E2u. Okay. Can I say this point is the point of first collision? This point, whenever it happens, it is the velocity after second collision. Similarly, this point will become E cube u and it will go up and then come down, and this will go until infinity. Okay. So this is all about after the third collision. So can anyone tell me what is the velocity after the nth collision? E raised to nu. Yeah. E raised to n times of u, which is e raised to n times of under root 2g h initial. 2g h initial कर दूं इसको, चलेगा क्या? Yes, sir. ये एक फॉर्मूला बन गया, which is that. अच्छा, can you tell me what is the height reached in the nth collision? In one dimensional motion, height का फॉर्मूला क्या था? भाई, when you are throwing anything U from square ground, by 2g. हाँ, can I say the height reached in nth collision will become vnth square by 2g? These all formulas are very important. So यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो ये हो जाएगा e raised to 2n times of u by 2g, and u is under root 2g at this, so we know only. Hello. Acha, can anyone tell me what is the time of ascent plus descent? Time in the nth collision. Time का फॉर्मूला क्या है? 2u by g. nth collision के लिए u nth by g, that is e times of n times u by g. This is also important. This is time of flight, हाँ पूरा. ना ठीक है सर, this to we know. This is very important. शायद I don't think so it is given in DC. So you need to take a screenshot.
अच्छा, before doing this, can anyone tell me the total time taken before coming to rest? Total time taken before coming to rest मतलब क्या? It is following an infinite series, right? So before coming to rest, the total time taken. So can I say the time net will be? Can I say पहले वाला टाइम गिरने का टाइम लगेगा u by g. हेलो, ये टाइम दैट इज u by g प्लस ये डबल है ना भाई, दिस इज सिंगल ओनली ना, ये देखो ना, दिस इज सिंगल ओनली ना, एंड दीज आर डबल 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 डबल, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स कितना हो जाएगा u by g प्लस 2 टाइम्स e स्क्वायर u by g प्लस 2 टाइम्स e क्यूब u by g प्लस टिल इन्फिनिटी. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? हेलो बेटा, हाँ ना बोलो, Yes, ये sir. इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि स्टार्ट में तो एक ही गिर रहा है ना, डबल थोड़ी हो रहा है. Now, can I say what is common and what is happening over here? This will become u by g. It is 1 plus 2e plus 2e square plus 2e cube till infinity. हेलो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज u by g, 1 plus 2 कॉमन, यहाँ पर ब्रैकेट में एक सीरीज बनेगा e plus e square plus e cube infinity. हेलो यार बोलो. अच्छा, ये कौन सा सीरीज है, किसी को पता है क्या? Infinite GP. इनफाइनाइट जीपी है. ओके. And obviously e square will be less than 1. E is always less than 1 na, the e square will also be less than 1. So converting into gp का s infinity का फॉर्मूला क्या था? a upon 1 minus r बराबर क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखने जाते हैं तो t net क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा u by g 1 plus 2 a upon 1 minus e बराबर क्या? Yes, हेलो, sir. क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा u by g, ये कितना हो जाएगा? 1 plus 2e by 1 minus 1. तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको आएगा कितना आएगा? ये 2 का 2 हो जाएगा. इधर कितना होता है देखो जरा, 1 plus 2e upon 1 minus e u by g होता है 1 minus e plus 2e by 1 minus e. So this is going to become u by g 1 plus e upon 1 minus e. This is t net. So t net can also be written as u को लिख सकते हैं under root 2 g h initial by g 1 plus e upon 1 minus e. हेलो बेटा, हाँ ना, करेक्ट है क्या? Okay, so this is sometimes asked in the examination. Similarly, if they ask you about the height, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, हाइट के लिए निकालना. हाइट कैसे निकालेंगे बेटा? ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. कैन एनीवन टेल मी टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? हेलो यार, कुछ तो बोलो. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट क्या रहेगा? H initial. प्लस 2h1 प्लस 2h2 गोइंग अप टिल वेयर सर? इन्फिनिटी. बराबर क्या? तो यहाँ पर है ये. अच्छा, h का फॉर्मूला कहाँ से लेना है? ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से लेके आप लोग डिराइव करना, एंड you can do it and get the result which is there. If you don't get, I'll do it next time. ये चीज है, ये भी जीपी में ही आ जाएगा. ओके, तो आप लोग को सॉल्व करना है and you will get the resultant answer.
ठीक है ना? ये सब चीज was about collisions which was there. I'll go further because some part of other collision is also left. Now I'm starting with something called as oblique collisions. Oblique collisions. Now ध्यान देना है इधर क्या हो रहा है. Okay, oblique collisions on a flat surface. Suppose there's a flat surface. And this is all about elastic I'm dealing. यहाँ पर क्या होगा, एक body is going to come. It will hit. This is the normal. बेटा ये अल्फा है. Or suppose it will go back with beta. It is coming with u and going with v. And suppose E का value elastic है, so it is 1. Hello, I all there? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं. अच्छा, हमको एक चीज पता थी लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि ये डायरेक्शन को बोलते हैं कॉमन टेंजेंट. एंड इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? Common normal. कॉमन नॉर्मल. वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन. आपको ये चीज पता रहेगी, बराबर है? हेलो, देखो ना, Yes. ये अगर u है ना, ये एक कंपोनेंट है और ये उसका दूसरा कंपोनेंट, बराबर है क्या? तो दिस कंपोनेंट इज गोना बिकम व्हाट सर? ये देखो ना, ये U इधर आ cos रहा है, alpha. ये इधर जाएगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये नीचे, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है? ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये हो जाएगा u sin अल्फा और ये हो जाएगा u cos अल्फा. डू यू एग्री विथ मी? हेलो, आर यू देयर और नॉट? यस और नो? Yes, sir. ओके, वैसे ही जाते समय ये v जो है, इसके भी दो पार्ट में हमने तोड़ दिया है, ऐसे और ऐसे. तो उसको अगर नीचे ले लेते हैं हम लोग, ये ये हमारा v है, बराबर क्या? ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? v. वर्टिकल वाला कौन सा हो जाएगा? v cos बीटा. ये वाला हो जाएगा v sin बीटा, बराबर क्या? हेलो. Yes, sir. ये चीज हमको पता ही है, रेजोल्यूशन आपको आता ही है. डन इट. नाउ आपको एक चीज पता है कि जो इम्पल्स लगेगा बॉडी पर वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? कैन एनीवन टेल मी द इम्पल्स इज एक्टिंग अलोंग विच डायरेक्शन? द कॉमन नॉर्मल और द कॉमन टेंजेंट? Common normal. कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में ही इम्पल्स लगता है. आपको पता ही है ना, जब बॉल आके इधर टकराएगा when the ball comes and hits, there will be a normal exerted, an impulse which is exerted by him on him, similarly on him also. भाई दीवार पे भी तो लगेगा. हेलो, यस और नो? बट ये डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है. कॉमन टेंजेंट में j is 0. कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में j is not equal to 0. I'm talking about each body.
हर एक बॉडी पर जे लगेगा, उसके कारण ये जे के कारण क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बराबर है क्या? हेलो। Yes, sir. बट सिंस यहाँ पर एक इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e times of relative velocity of approach. Can anyone tell me what is the relative velocity of separation in the diagram? हेलो, बॉल का सेपरेशन वेलोसिटी क्या है? v, भाई क्या है? Cos beta. v cos beta is e times of q cos alpha. हेलो 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 हेलो, सही है ना भाई? e का वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, e का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करते हैं, ठीक है, चलेगा ना? Yes, sir. हेलो, बिकॉज e का वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो दिस कंडीशन कैन बी डन विद इनइलास्टिक पार्शियल आल्सो ना। हेलो, यस और नो? अच्छा, ये चीज कौन से डायरेक्शन में है बेटा? अलोंग विच डायरेक्शन? Common normal. जिस डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है। अच्छा, अलोंग कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन क्या होने वाला है? कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर कोई इंपल्स नहीं है ना, इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है। सो इंपल्स नहीं है मतलब पहले वाला स्पीड और बाद में वाला स्पीड सेम है। तो व्हाट इज द पहले वाला स्पीड इन दैट डायरेक्शन? u sin alpha. And what is the final velocity in that direction? v sin beta. Hello, yes or no? Yes, sir. Correct है, fine. अच्छा सर, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, अभी हमको पता चल जाएगा कि e का वैल्यू कितना है। How much is e का वैल्यू? 1. 1. So in an elastic collision, e is 1. So if I substitute this, I'll get v cos beta is equal to e times of u cos alpha. ये पहला इक्वेशन मिला। और दूसरा इक्वेशन मिला आपको क्या? u sin अल्फा, u sin अल्फा, u के नीचे u is equal to v sin beta. Hello, yes or no? Can I square and add? क्या होगा भाई? yes or no? क्या हो गया? cos square sin square 1 होता है, तो ये हो जाएगा v square is equal to u square। इसका मतलब v will become equal to u। तो अगर v और u सेम हो गया तो इसका मतलब अल्फा बीटा भी सेम हो गया। हेलो 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 हेलो, यस और नो? हाँ। इसका मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जो स्पीड से आएगा वही स्पीड से जाएगा, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर द सेम, यस और नो? ये किस में पाया गया है? कैन एनीवन टेल मी इन विच चैप्टर यू हैव नोन दिस थिंग? हेलो, ये कहां पर देखा गया है? इन केस ऑफ, भाई क्या हो रहा है? यस और नो? इन केस ऑफ व्हाट? Reflection. लाइट ना। ऑप्टिक्स में देखा गया है कि लाइट के जो पैकेट्स रहते हैं, लाइट के जो पैकेट्स रहते हैं, अगर आपने क्वांटम थियरी पढ़ा है तो विराव सर विल टीच यू ऑल। तो लाइट के जो पैकेट्स रहते हैं जब टकराएंगे आके, दिस विल बी अ लाइट का पैकेट, सपोज दिस इज अ पैकेट, इसको बोलते हैं क्वांटा। जब वो आके टकराएगा तो यही चीज होगी। एंड विच कोलिजन इज टेकिंग प्लेस इन ऑप्टिक्स? कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। हेलो, यस और नो? ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। इट विल बी very helpful for everyone. I'm going very slow over here so that you all can understand. अब हम लोग यही चीज में पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में बात करेंगे। तो ये तो इलास्टिक कोलिजन था। Now I'm talking about in the same thing, I'll talk about partially elastic collision.
पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में ये नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा, बराबर है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? या Yes, sir. पार्शियली इन इलास्टिक, जो भी आप कहते हो, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली, यहाँ पर ई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो यहाँ पर सीधा सीधा ई का वैल्यू ई रहने दो, बिकॉज ई विल बी गिवन, ई इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी गिवन, बराबर क्या? अभी इधर सीधा सीधा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, ठीक है? हेलो 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 हेलो, बोलो भाई। तो ये अगर इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता सकते हो आप लोग? आई डोंट हैव स्पेस टू राइट ओवर हियर, देखो आई एम डायरेक्टली स्क्वायरिंग ओवर हियर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वी V स्क्वायर square. साइन स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। हेलो, अरे भाई व्हाट इज हैपनिंग, यस Yes, और sir. नो? करेक्ट है ना? तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉमन निकला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर cos square alpha is equal to v square. Hello, so v is going to become u under root of sin square alpha plus e square cos square alpha. हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. ये चीज है, ओके। एंड अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है आपको, तो कैन आई से अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा डिवाइड करके, 1/2 डिवाइड करो या 2/1 डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 1 कर लो, तो u और u कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई ई इज इक्वल टू tan बीटा। हेलो, डिवाइड करके देखो ना, यस और नो? हेलो, Yes, sir. 2/1 डिवाइड करो ना यार, एवरी टाइम आई शुडंट एक्सप्लेन एवरीथिंग है। तो 2/1 अगर आप डिवाइड करेंगे u को u से, v को v से, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। तो मैथ्स में तो रोज ही करते हैं। अच्छा, सिमिलर थिंग, ये तो हो गया पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंस फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? क्या करना पड़ेगा? हेलो यार, कुछ तो बोलो। Will stick. हाइट विल स्टिक मतलब ई का वैल्यू कितना होता है? 0. ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, सही है ना? तो ई का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? कुछ बचेगा ही नहीं। हेलो हेलो, देखो ना, ई 0 हो गया है यहाँ पर, तो वी का वैल्यू भी 0 हो गया ना, Yes, sir. ये भी कुछ बचेगा नहीं, मतलब वी का वैल्यू 0 हो गया, मतलब इनडायरेक्टली एज यू टोल्ड बेटा कि दे विल स्टिक टू वन अनदर एंड मूव, बराबर क्या? दे विल स्टिक टू वन अनदर। यहाँ पर ये क्ले का एक लंप आके जमीन से चिपक जाएगा। So, but won't it have velocity along a common tangent? v 0 हो चुका है ना बेटा, या इट विल हैव वेलोसिटी, v 0 हो चुका है ना यहाँ पर। एंड व्हाट इज v? बिकॉज दोनों का वेलोसिटी इज, सेपरेशन वेलोसिटी इज नॉट एग्जिस्टिंग। सी, relative velocity of separation is e times relative velocity of approach, बराबर क्या? Yes, sir. e का वैल्यू कितना है, 0 है। कैन आई से relative velocity of separation कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब अगर जमीन 0 है तो बॉडी को भी 0 बनना पड़ेगा ना। हेलो, So, but it could have velocity along common tangent. along common tangent direction it will have, yes, that we'll see in oblique collision in 2D plane। अभी जो इसके बाद में आएगा, that we'll see, it could have, yes, it can have। यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड कर सकता है, u sin अल्फा विल बिकम इक्वल टू v sin बीटा। वो हम लोग देखते हैं अभी, जैसा आएगा ना बेटा 2D प्लेन में, आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर है। हेलो, यू आर टेलिंग करेक्ट कि भाई क्या होगा, कि भाई ये ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे मूव हो गया, बराबर क्या? Yes, यू sir. टेलिंग इन दिस में ना, हाँ ये बराबर है, करेक्ट है। बिकॉज ये फॉर्मूला जो लगेगा
वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इट इज ओनली फॉर विच डायरेक्शन? Common normal. कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, बराबर है आपकी बात. दैट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई डू द अदर डेरिवेशन. ठीक है, चलो अभी और आगे बढ़ते हैं. देयर आर टू मोर डेरिवेशंस, देन आई विल कम टू द प्रॉब्लम्स. नाउ आई एम डूइंग oblique collision in 2D plane. अभी ध्यान देना सब लोग. तो अभी दीवार नहीं है, अभी देयर आर टू बॉडीज. वन इज m1 गोइंग एट द स्पीड ऑफ u1, ऐसे जा रहा है, गोइंग अलोंग द x axis, and there is another body m2 coming with the speed of v2. यहां पर आके उसने ये बॉडी से टकराया ऐसे. हेलो, yes or no? Can I say this is nothing but a common normal direction, and this is the common tangent direction. हेलो बोलो. Yes, sir. तो इसके कारण यहाँ पर एक इम्पल्स इसको लगेगा, एंड यहाँ पर भी एक इम्पल्स लगेगा. ओके, एक्चुअली मैं स्लो जा रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा. ओके, एंड शायद ये वीक में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स खत्म नहीं होगा, तो टिल वेरेवर आई हैव डन आई विल बी टेकिंग द टेस्ट फॉर दैट पार्ट. गेटिंग इट ना? हेलो, पूरा चैप्टर शायद खत्म ना हो, इट विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीक आल्सो, बट टेस्ट जो होगा ऑन सैटरडे विल बी बेस्ड ऑन व्हाटएवर इज टॉट टू यू ऑल. गेटिंग इट ना? Yes, sir. Yes. तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, एंड next time we can take the full exam also with the combo. We need not worry about chapters not getting over. ये चीज है. अच्छा, इसके कारण क्या होगा? जब इम्पल्स लगा तो उसका स्पीड जो है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया. कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ m2 will become v2, because initial velocity v था ना, so it will not go in the direction of impulse, it will go in some other direction which I don't know. Let initial angle be theta. ये एंगल को हम लोग थीटा पकड़ते हैं. लेट इसका एंगल जो m2 मुड़ा, इसको बोलेंगे θ1, एंड u1 सपोज इधर जा रहा है, वो भी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज़ इट वाज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, इट विल गो इन द अदर डायरेक्शन. इट विल बी सपोज दिस वे. आई एम नॉट ओके, आई डोंट नो, वो सब हम लोग फाइंड कर लेंगे. इसको बोलेंगे v1, एंड दिस एंगल विल कंसीडर θ2. हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस और नो? हेलो. Yes, sir. θ1 plus θ2, a technical name is angle of divergence. Angle of divergence. कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन डायरेक्शन हमको मिल गया. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ. दिस इज अ 2D प्लेन, राइट? दिस इज 2D मोशन. We have to break this into x axis as well as y axis. Yes or no? हेलो यार बोलो. तो कैन एनीवन टेल मी, यू राइट मोमेंटम इक्वेशन अलोंग x axis? तो ये जो चीज हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ना. That means initial momentum is equal to final momentum along x-axis also as well as along y-axis also. चलो एक काम करो, मोमेंटम इक्वेशन लिखो along x-axis. Come on, anyone, please. Initial momentum कितना है m1 का? 1 u1 दूसरे वाले का क्या है? m2. m2 u2 cos theta. ये देखो, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना. ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा रहेगा. तो ये हो जाएगा m2 u2 cos थीटा, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा m2 u2 sin थीटा. तो ये हो जाएगा m2 u2
cos theta. What about V1 and V2? M1 V1 cos theta 2. M1 V1 cos theta 2 and M2 V2 cos theta 1. बराबर क्या चीज? हेलो आई ऑल देयर? Yes, sir. ये चीज तो ठीक है. अच्छा y एक्सिस में अगर लिखना है तो अलग से तो बोलो कैसे लिखेंगे y एक्सिस में? M2 U2 sin theta. पहले तो यही है m2 u2 sin theta. So won't it be Okay. minus? माइनस यस, वेरी गुड. आगे बोलो. यस सर. M2 U2 sin theta 1. माइनस m1 v1 sin theta. यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये चीज है. अच्छा फाइन. ये इक्वेशन बना के हमको रख देना है. इसका कोई रिजल्ट आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज ड्यूरिंग द सम ओनली विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. हेलो, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखने आना चाहिए. अच्छा अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तो और चीज क्या कंजर्व्ड है? अगर ये इलास्टिक हुआ तो ओनली इलास्टिक कोलिजन तो Kinetic कंजर्व्ड energy. है ही. कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओनली फॉर इलास्टिक? ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन. मोमेंटम तो हर चीज में कंजर्व्ड ही है. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है. तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड रहेगा तो दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड इट इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है. हाफ m1 v1 स्क्वायर plus half m2 v2 square. This is all about only elastic collision. Otherwise, obviously, there is a loss in kinetic energy. बराबर क्या? हेलो, यस और नो? बाबा Yes, बोलो. sir. और दो चीजें हैं, दो डेरिवेशंस हैं. देन आई विल कम बैक टू आवर सम्स. I'm discussing something called as impact parameter. ठीक है, डेरिवेशंस हम लोग कर लेंगे तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा rather than doing the derivation in the sum only. So suppose there was a ball of m1, speed of u1 is going along this line. और यहाँ पर एक दूसरा there's another at a distance of p there's another ball m2 going at the speed of u2. ओके, तो इसने इसको इधर पकड़ लिया. सपोज ऐसे कुछ. भाई समझ में आ रहा है क्या? हेलो, तो ये डायरेक्शन हमारा बन गया कॉमन टेंजेंट. और ये डायरेक्शन क्या बन गया? हेलो, कॉमन नॉर्मल. बराबर है क्या? यस और नो? तो यहाँ पर कैन आई से दिस गाय goes with the speed of v2 is m2 and this guy goes with the speed of v1.
and the angle with respect to its horizontal is theta 1, and with respect to its horizontal theta 2. अरे बेटा हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? हेलो yes or no? Hello, are you all there? Yes, sir. Theta 1 is the angle of divergence of the first ball, and theta 2 is the angle of divergence of the second ball, and theta 1 plus theta 2 is the divergence angle of two balls after collisions. Hello, चलो मोमेंटम इक्वेशन लिखो x एक्सिस में. चलो जल्दी फास्ट. x एक्सिस में मोमेंटम इक्वेशन क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो मैन, प्लीज टेल मी. m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. y एक्सिस में अगर आपको लिखना है तो ये तो जीरो हो जाएगा इनिशियल, बिकॉज इनिशियली नो वन इज मूविंग. फाइनली इट विल बिकम m1 v1 sin theta 1 minus ये दूसरा वाला नीचे will become m2 v2 sin theta 2. that can also be written as m1 v1 sin theta 1 is equal to m2 v2 sin theta 2. हेलो Yes, sir. ठीक है. और अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तो, इलास्टिक कोलिजन ओनली हुआ तो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. हेलो, that means half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 e1 square plus half m2 e2 square. Do you agree with me? ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बातें हैं. ओके. इम्पैक्ट पैरामीटर ध्यान रखना, अगेन दिस इज नॉट गिवन इन डीसी पांडे. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस होता है. जब ऑब्लिक कोलिजन होने वाला रहता है उसके बीच में का डिस्टेंस बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. ओके. हेलो, Yes, sir. ठीक है. अभी इसके ऊपर एक केस करते हैं, लास्ट केस व्हिच इज देयर व्हिच आई वांट टू डिस्कस, एंड देन वी कैन गो टू द सम्स. केस वन ही है, एक ही केस है इसका. आई विल डील विद दिस ओनली. सपोज देयर वाज अ बॉल ऑफ, there was a ball of mass m, radius r1, and mass m1 going at the speed of u is going this way. So there's a ball which is resting over here at an impact parameter p. इम्पैक्ट पैरामीटर है. ये बॉल यहाँ पर रेस्ट पर है. हेलो, यानी से जब ये आएगा, जब ये आया m1 वाला, ये तो m2 है जो रेस्ट पर है इनिशियली. जब ये आएगा इधर, सपोज ये इधर आ गया, ये से टकराएगा. Can I say this will be the common tangent and this will be the common normal? Yes or no? Yes, sir. हेलो. एंड इसके बाद में दोनों का स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा. दिस स्पीड लेट बी v1 थीटा 1, एंड ये तो डायरेक्टली इंपल्स के डायरेक्शन में ही जाएगा बिकॉज इनिशियली इट इज नॉट मूविंग. तो कैन आई से इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ v2 and the divergence angle will become theta. Do you agree with me? हेलो, Yes, sir. एकदम क्लैरिटी होना चाहिए. टोटल डाइवर्जेंस एंगल विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2. और कह रहा है ये एक इलास्टिक कोलिजन. मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि दूसरा बॉडी रेस्ट पर है, पहला बॉडी मूव हो रहा है ओब्लिकली, तो क्या होने वाला है? कैन एनीवन राइट इक्वेशन ऑफ मोमेंटम along the x axis? So m1u
is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2, ये along x axis की बात है। y axis में अगर लिखना है तो ये दोनों का उल्टा कर देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, तो कैन आई राइट दिस एज m1 v1 sin theta 1 is equal to m2 v2 sin theta 2. Hello, do you agree with me? Hello, yes or no? Yes, sir. और अगर मैं आपसे कहूँ ये इलास्टिक कोलिजन है, दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस व्हाट, हाफ m1 u square half m1 v1 square plus half m2 v2 square. अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अच्छा, दोनों के मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट? ओके, हेलो, M. गेम कैंसिल हो जाएगा पूरा, बराबर। इसको पकड़ते हैं इक्वेशन 1, इसको पकड़ते हैं इक्वेशन 2। नाउ एक काम करो, इसको इधर ही ले लो, इक्वेशन नंबर 2। इसको इधर ही ले लेता हूँ मैं, तो कैन आई राइट दिस एज 0 इज इक्वल टू क्या भाई? हेलो, v1 sin theta 1 माइनस v2 sin theta 2, ये भी चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब हम लोग स्क्वायर और ऐड करते हैं इन दोनों को, 1 और 2 को स्क्वायर एंड ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2 the whole square. Can anyone tell me what will it become? V1 square. Square cos square theta 1 plus v2 square cos square theta 2 plus 2 v1 v2 cos theta 1 cos theta 2. Hello, are you there? दूसरे वाले टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर sin square theta 1 plus v2 square sin square theta 2 minus 2 v1 v2 sin theta 1 sin theta 2. Are you there with me? Hello हेलो Yes, sir. हेलो। अच्छा, इसको देखो, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। अच्छा, ये क्या बन गया? ये u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ऊपर नीचे, v2 स्क्वायर ऊपर नीचे, 2 v1 v2 cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या होता है? क्या होता है भाई? cos a Cos cos A. b, ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये मिल गया आपको। अच्छा, एक और एक बात है यहाँ पर, अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में देखो, इसमें कैन आई से हाफ 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 उड़ा दूं, m m m कैंसिल कर दूं, कैन आई से यहाँ से रिजल्ट क्या मिला मुझे? u स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दैट मींस u स्क्वायर एंड v1 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर आर द सेम, यस और नो? हेलो, दैट मींस दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू 0 ना? अरे भैया बोलो यस और नो? Yes, sir. दैट मींस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज व्हाट सर? 0। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आएगा? कितना आएगा 90. भाई? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई प्रूफ नहीं करने का। दैट मींस इफ देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन, elastic oblique collision, okay, one mass is at rest and m1 is equal to m2 is a common name m, then theta 1 plus theta 2 कितना रहेगा? हेलो हेलो, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया जेई में तो मैंने डिराइव ही कर लिया।
ताकि आपको कोई टेंशन ना हो. Did you all get today's lecture? Hello. Yes, sir. I'm doing collisions again only so that it is properly done. 2 lectures for collisions we have taken. Okay, so I think we have done everything in terms of collisions. अभी हम लोग कुछ sums की तरफ आते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए. Sums, I think so. It is 11.6. 11.6 जो भी आपका पेज नंबर है, because I have the old book. 11.6 पर आता है, ठीक है ना? Yeah. Do some important questions and देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है. Can you see the slide? Hello. Yes, sir. ये थोड़ा पहले का स्लाइड है तो ठीक है. That is all okay. You all can understand the thing. यहाँ पर this is question number 1 of your 11.6. कुछ 4-5 क्वेश्चंस करते हैं जितना टाइम बचेगा आपके पास, and then you will practice and you will understand what's happening. ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, 2 blocks of masses 3 and 6 are placed on a smooth horizontal surface. They are connected by a light spring. तो यहाँ पर there is a spring which is connected है. ये पूरा connection है यहाँ of K दिया है. Initially the springs are in unstretched condition. The indicated velocity is imparted to the block. Find the maximum extension in the spring. अब ये देखो सिनेरियो क्या होने वाला है. Just pay attention please. Can I say initial तो ऐसे ही था, ये 3 है और ये K है, ये 6 है. He is going with 1 meter per second and this guy is going with 2 meter per second. और initially x is 0. मतलब कोई kx नहीं आएगा. अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर जब स्प्रिंग खींचा जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? स्प्रिंग फोर्स. हेलो, अभी तो फिलहाल स्प्रिंग फोर्स नहीं है, बट अगर ये थोड़ी देर और खींचा जाएगा तो व्हेट विल बी द स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टेड? Away प्लीज टेल from मी. the body into the spring. ओके, या सो दिस विल बी ऐसे हो जाएगा. आर यू देयर? आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. और ये खींचा जाएगा तो यहाँ पर एफएसपी आएगा. कैन आई से एक सिचुएशन ऐसे आएगा वेयर, अच्छा ये जो फोर्स है ये दोनों की स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा? यस सर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. Decrease. डिक्रीज द स्पीड. दैट मीन दोनों का स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है. ओके, तो दोनों के मासेस भी अलग अलग है, आपको दिख रहा है. एक पॉइंट ऐसे आएगा where the spring will have maximum stretching. This is x max, which I don't know. This is 3 and this is 6. Can I say this speed will also be v and this speed will also be v? Because remember last time I had told you when potential energy is maximum, kinetic energy at that point is what, sir? Minimum. And minimum speed will only happen, okay, minimum kinetic energy will only happen when the speeds are equal. ये चीज last time मैंने आपको पढ़ाई थी, बराबर है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. याद है ना? कोलिजन के टाइम पे ही तो हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था भाई. दैट मीन द स्प्रिंग्स आर गोइंग right now when x maximum happens with common speed. बराबर क्या? हेलो, ये कॉन्सेप्ट समझा आप लोग को? ओके, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में दोनों का स्पीड फिर से अलग हो जाएगा एंड दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी ओके विल डिक्रीज अगेन. So can anyone tell me momentum is conserved? Na?
That means initial momentum m1 u1 plus m2 u2. So can you use some other color? Yeah, I'll use some other color. अभी दिख रहा है बेटा? Yes, sir. हेलो भाई, सही है ना? हेलो 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 बोलो. Yes, sir. चलो भाई, वैल्यू निकालो. क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो. 3 into -1 plus 6 into 2 will become 3 plus 6 into v common, na? So won't both V common be in the same direction? सेम डायरेक्शन कहाँ? अभी तो v कॉमन हो गया ना उधर आके. हेलो, वेलोसिटीज आर द सेम ना बेटा? हाँ, v कॉमन विल बी इन द सेम डायरेक्शन. आप क्या कहना चाह रहे हो? सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा? ये जाके फिर क्या होगा? f बेटा यहाँ पर f लगेगा ना. ये तो जा ही रहा है ना, कम हो रहा है ना बेटा. तो ये 1 से कम होगा, ये 2 से कम होगा. And then they will acquire v common and then they will stop. Hello, then they will stop. Common velocity पहुंच गया. What are you trying to say beta? Hello, No, so I'm saying in the diagram V common is in opposite directions. हाँ, sorry. Yeah. ये आप कह रहे हो? Okay. Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. Now, can I say v common यहाँ से कितना आ जाएगा? Six to the 12 minus 3 कितना होता है? 9. 9 will become 1 meter per second. Got it? Could you अच्छा, comment can the concept thoughts? yeah. See, क्या हो रहा है? ये 3 है और ये 6 है. बराबर है क्या? Yes, sir. ओके. ये 3 है और ये 6 है. नाउ व्हेन इट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड बेटा, द एक्सटर्नल फोर्स, द इंटरनल फोर्स इज एक्सर्टेड इन विच डायरेक्शन? कौन से डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स लग रहा है? हेलो, Center. Just या एक मिनट. फाइन. तो फोर्स ऐसे लग रहा है. ये कितना हो गया? ओके. अब क्या होगा? मेरी बात सुनना सब लोगों की इधर. अच्छा, ये फोर्स स्पीड को कम कराएगा कि बढ़ाएगा? हेलो, will reduce the velocity. इट विल रिड्यूस द स्पीड. तो यहां पर क्या होगा? ये और कम हो गया. सपोज ये सपोज हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड और ये खींचा जा रहा है. हेलो, ये हो गया सपोज 1.5 मीटर पर सेकंड. आर यू अग्रीइंग विद मी? Yes, sir. ओके. ये तो ऐसे ही जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है. कैन आई से कौन जीरो बनेगा सबसे पहले? हेलो, The one with lower velocity. 3 kg के 6 kg. 3 कौन जीरो बने? 3 kg.
तो ये 0 बन गया। हेलो, गिरेंगे ना? Yes, sir. और सपोज ये जा रहा है 1.25 पे, क्या समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. अब ये फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है। अब ये फोर्स जो है, जो 3 पे एक्ट कर रहा है, वो कौन सा डायरेक्शन में खींचेगा उसको, 3 वाले को? To the right. हाँ, इसको खींचेगा। और ये जो है, ये ऐसे ही जा रहा है। कैन आई से ये एक मोमेंट ऐसे आएगा, with this speed will be 1 and this speed is also 1. Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. So this is the whole concept of spring extension. I hope everyone has understood this thing. ये आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. हेलो, चलो बाबा, ये करेक्ट है। अभी कौन सा और चीज कंजर्व करना है? हेलो, Energy. एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। कैन आई से टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल विल बिकम हाफ m1 v1 स्क्वायर, पहले वाला केस, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, and finally energy will become half m1 plus m2 into v square, v9 1 है, plus half kx square. हेलो हेलो, आर यू Yes, देयर sir. विथ मी? यार, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो यहाँ से x मैक्सिमम का वैल्यू जब आपने फाइंड किया, तो आपको वैल्यू 30 सेंटीमीटर मिलेगा, मतलब 0.3 मीटर मिल जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इसका एक और एक शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। ये रब कर दूं मैं? कैन आई रब दिस थिंग? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट and then I'll rub this. ये भी खत्म नहीं होगा आज, because there are 11 questions, so I'll do 2 3. Yes or no? हेलो 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 हेलो, यार इसको रब करूं कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ, ट्रिक आई टेल यू। कैन आई से सिंस कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है बेटा यहाँ पर, पूरे सिस्टम में कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? Conservative. हाँ। कैन आई से डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोल सकते हो? हेलो, यू टोटल Yes, sir. एनर्जी सेम है ना? अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था इन टर्म्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन व्हेन द बॉडीज वर मूविंग विद कॉमन स्पीड, याद है? अरे भाई, ये याद है? कॉमन चेंज इन काइनेटिक Half एनर्जी का m1, हाँ m2. हाँ 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 हाँ। हेलो, यू ऑल आर देयर? एक मिनट हाँ। कैन यू ऑल लिसन टू मी? हेलो, Yes, sir. थोड़ा स्क्रीन उड़ गया है, ठीक है, दैट इज ऑल ओके, डील विद इट। देखो बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा था? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है? हेलो, Yes, sir. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, when the body is moving common speed in terms of inelastic collision। यहाँ पे inelastic collision नहीं है, but हमको मालूम है एंड में दिया मूविंग विद कॉमन स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला? Half m1, m2 upon m1 plus m2. u1 minus u2 द होल स्क्वायर, याद आ रहा है? हेलो हेलो, क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ m1 m2, m1 m2 मतलब 3 into 6
अपॉन 9 u1 माइनस u2, दोनों को ऐड हो जाएगा ना। अरे भाई दिस इज नथिंग बट वी यू रिलेटिव ना। हेलो 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 Yes, sir. भाई रिलेटिव स्पीड है, दोनों का साइन तो लेना पड़ेगा। विल बिकम 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर। के कितना है 200 है, एक्स मैक्सिमम द होल स्क्वायर। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? हेलो यार क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये उड़ गया देखो। Yes, sir. 3 6 18, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 9 बाय 200। क्या हो गया? ये क्या होता है? बराबर हो गया? कितना आएगा? 0.3 मीटर। बराबर क्या? Yes, sir. देख लो। तो मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, rather than applying all that things। ये ट्रिक है, ये शॉर्टकट है। आपको कन्वेंशनल मेथड तो आना ही चाहिए, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, it will not be dissipated as heat, it will be converted into potential energy of the spring। and loss in kinetic energy का फॉर्मूला हमारे पास कहां से आया? ये because why I have used this formula। ये तो फॉर्मूला सर इनइलास्टिक का था, यहां पर इनइलास्टिक नहीं हो रहा है। कोई बता सकता है हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया यहां पर? हेलो, Bodies are finally moving with same speed. कॉमन स्पीड। और इनइलास्टिक का भी कॉन्सेप्ट यही है ना, फाइनली बॉडीज आर मूविंग विद कॉमन स्पीड। यस और नो? हेलो, Yes, sir. इसलिए मैंने यूज किया है भाई। ये ऐसे नहीं है कि इनइलास्टिक कोलिजन है, ये याद रखना। ये जनरली बुक्स में नहीं दिया रहता है, ओके? ये नहीं दिया रहता है बुक्स के अंदर, बट यहाँ पर फॉर्मूला हमने कुछ जुगाड़ लगाया ऐसे और हमने कर लिया। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? कॉन्सेप्चुअली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। हेलो, अगर आप कोई फिजिसिस्ट से बात करेंगे तो कहेगा भाई ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, बट हमने यही फॉर्मूला का जुगाड़ उधर लगाया एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir. हाँ, तो ये सब ट्रिक्स है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग कर सकते हो। one more question I'll do, that is question number 3 and question number 2 are the same only, and then a lot of time it is taking. Question number 16 17, I'll do the 18th question. Okay, 18 matlab it is the third question. What is the fractional decrease in kinetic energy of a body of mass m1 when it makes a head-on elastic collision with another m2 kept at rest? Okay, so तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? भाई डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फ्रैक्शन क्या होगा? अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. इसको बोलूंगा मैं फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या? ये फॉर्मूला पता है सबको? हेलो, सबको पता है क्या? यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? के ई अपॉन के ई इनिशियल, ये हो जाएगा 1 माइनस के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल। ये के ई है तो दैट इज ऑल अंडरस्टूड ओनली, कोई बात नहीं है। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल चेंज इन बराबर क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस हाफ m 1। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज अ फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी m1 चाहिए। हाँ, सिर्फ m1 के बारे में बात हो रही है। हेलो, यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर अपॉन इनिशियल क्या रहेगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर। आर यू अग्रीइंग? Yes, आर यू sir. अग्रीइंग? सिर्फ बॉडी m1 की बात हो रही है, पूरे सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही है। सिस्टम का तो जीरो होगा ना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना। सिर्फ m1 के बारे में बात कर रही है। हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज दिस थिंग। अच्छा सर, अच्छा। डू यू नो द फॉर्मूला फॉर v1 and
in terms of u1. अरे भाई इलास्टिक कोलिजन में v1 लास्ट टाइम याद कराया था मैंने. इलास्टिक कोलिजन का v1 का फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 अपॉन इंटू u1 प्लस दूसरा टर्म तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज एट रेस्ट ना. हेलो, Yes, sir. 220 क्या कहना चाह रहा हो समझ में आ रहा है बात. तो व्हाट इज v1 बाय u1? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. ये आपको आना चाहिए, इसके बिना तो कुछ काम नहीं होगा. यहाँ पर कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस हाफ, और हाफ तो वैसे ही उड़ गया. m1 वैसे ही उड़ गया. v1 अपॉन u1 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. एक्चुअली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा बाद में. कितना होता है बेटा? ये हो जाएगा m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर. ऊपर a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर होता है 4ab. अरे भाई 4ab. Yes, sir. This is the fractional change in kinetic energy of m1 only. Sum of m1 लिख लूं. Yes or no? हेलो हेलो भाई करेक्ट है क्या? Yes, sir. तो ये आंसर आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 तो होल स्क्वायर. अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. देखो ना, ये वही है. A body is moving, body of mass m moving with a head-on collision with a mass 2m which is at rest. Find the fractional kinetic energy lost by the colliding particle. Colliding particle कौन है? m है ना. क्या था फ्रैक्शनल चेंज? हेलो, अरे यार क्या आया था आंसर? क्या था आंसर? यस सर. 4m1 m2 upon m1 plus m2 the whole square. 4m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा 4m1 is m, m2 is 2m अपॉन m1 plus m2 that is 3m the whole square. बराबर क्या? हेलो, तो ये m और m और ये m स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो गया. 4 2 जा 8 by 9. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. अरे भाई, so this is 1 2 3 which I have solved. अब ये collisions एक बार हो गया तो the chapter is done only. I'll be doing some important questions on Wednesday also, and then mass variable relation rocket sums बाकी है and impulse के questions बाकी है. That I'll finish it off by Friday. And आपका जो एग्जाम रहेगा सैटरडे का, that will be only based on your introductory exercises. Do you get it? हेलो. Yes, sir. तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आई थिंक 6 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस आर देयर 11.1 से 11.6 तक, वो पढ़ लो. एंड नेक्स्ट वीक आई विल बी डूइंग द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव. गेटिंग है ना? बिकॉज ये चैप्टर में इफ आई रन ना तो फिर बाद में मजा नहीं आएगा. बस एक ही चैप्टर है, थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग कर लेते हैं. रोटेशनल मोशन आपको आता ही रहेगा, दैट वी कैन डू आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.